Now look at this question number 9 here. In this question 9, it is given that and we have to evaluate it. So कोई property हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें? क्या किया जा सकता है इसमें? हम लोग क्या कर सकते हैं in this question 9? अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर लें तो क्या फायदा होगा उससे? सपोज इफ यू अप्लाई रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. So what is the benefit of this property is that it become 2x plus 2y. It become 2x plus 2y and it become 2x plus 2y, right? Now after that y, x plus y here, x plus y, x here, y here. तो अब आप देखेंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट रो यू कैन टेक दिस थिंग कॉमन. इसको आप कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से, राइट? अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो इट कम्स आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगा. 2x plus 2y कम्स आउटसाइड एंड व्हाट आई शुड राइट हियर? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, राइट? तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं. एंड हियर इट इज, आई हैव टेकन कॉमन फ्रॉम हियर एंड इट इज 1 1 1, राइट? नाउ let us apply the property that row 1 and now let me apply the property in the column. तो अब मैं इसको 0 बना लेता हूं कुछ एलिमेंट को. column 1 minus column 2 and let me apply the column 2 times to column 2 minus column 3. So what will happen then? It become 2x plus 2y, right? Then what is this element will become? This element will become 0. This become minus x. It become y. It becomes 0. It become y. It become x minus y. It's 1 x and y, right? Then expand it along row 1. रो 1 के along expand कर दीजिए. So two elements are 0. दो एलिमेंट तो 0 हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे रखेंगे 1 और 1 के साथ डिटरमिनेंट क्या आएगा? दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, minus x multiplied with minus x minus y, minus y multiplied with this will become y square, right? Then it is 2x plus 2y and it's minus x square plus xy minus y square. So this is the answer in this case after expansion. Anyone has book along with you? देखना, चेक करना बेटा, इसका आंसर ये आ रहा है क्या? कुछ गलत लग रहा है मुझे, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है शायद कहीं. minus 2x cube plus y cube. Okay, so it's right. So we can take minus common from here. यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आई शिफ्ट दिस माइनस हियर एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. So what is this formula for x plus y, x square plus y square minus xy? So this is the formula for x cube minus x cube plus y cube. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. अपराजिता, यही आंसर आप बता रहे हैं? x cube plus y. Yes. Okay. Okay, I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 1. Write it on your notebook and apply the property here. Make the two element equal to 0. Apply the property R1 minus R2 and R2 tends to R2 minus R3. Try to apply this property on this determinant. So what you have obtained? So आपकी थर्ड रो तो सेम रहेगी. फर्स्ट रो में आपका चेंज हो गया होगा, वहां पे आपका 0 आया होगा, यहाँ पे माइनस वाई आएगा, यहाँ पे 0 आएगा. यहाँ पे 0 आया होगा आपका, यहाँ पे y आया होगा और यहाँ पे माइनस x. सो लाइक दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 1 के अलोंग या रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए. प्लस माइनस प्लस. सो 1 आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 1. सो हाइड दिस
So it's xy minus 0 is equal to xy is the answer in this case. I hope this question is clear to you. Now look at this question number 11 here. Using the properties of determinant in question 11 to 15 prove that. Properties को use करना है और इसको solve करना है. So look at this question. Write this question on your notebook. Write this question on your notebook and take the left hand side. इन द लेफ्ट हैंड साइड यहां पे मुझे दिखाई देता है बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो ये ऑब्टेन मुझे कैसे होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आता है. अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊं R1 माइनस R2 तो मुझे अल्फा माइनस बीटा ऑब्टेन हो जाएगा यहां से, तो ये बाहर आ जाएगा. और एक बीटा माइनस गामा मुझे ऑब्टेन हो जाएगा इफ आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3. सो ट्राई टू अप्लाई दिस टू प्रॉपर्टीज ऑन योर नोटबुक. ये प्रॉपर्टी लगाइए और फिर देखिए क्या होता है. थर्ड रो में तो हम लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं तो ये सेम रहेगी. फर्स्ट में आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो फर्स्ट रो आपकी ये बन जानी चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड इट्स ये बीटा माइनस अल्फा. और सेकंड रो में चेंज हुआ होगा आपका, ये आपका आया होगा बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और ये आएगा आपका गामा माइनस बीटा. राइट. इसके बाद यस सर. आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आप कॉमन ले सकते हैं यहां से. फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो से आप अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया आपने और सेकंड स्टेप में आपने बीटा माइनस गामा कॉमन लिया. तो आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा इनसाइड दिस, यहाँ पे 1 हो जाएगा. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया आपने अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे -1 रिमेनिंग बचेगा. इट्स -1. राइट. और यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन लिया, यहाँ पे -1 बचेगा आपके पास. इट्स -1. सॉरी इट्स नॉट -1, इट्स 1 ही बचेगा. यहाँ पे आएगा 1 एंड हियर इट इज रिमेनिंग इज बीटा प्लस गामा. और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेना होगा तभी वो बीटा माइनस गामा बनेगा. तो यहाँ पे आपका -1 कॉमन आ जाएगा. राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ लेट अस अप्लाई द प्रॉपर्टी अगेन. So where we should apply the property now? Okay. Now apply the property again. Row 1 tends to row 1 minus row 2. Row 1 में row 1 minus row 2 की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए तो what will happen then? Look at this. This becomes 0. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फा माइनस गामा. -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो 0. राइट. And all the things as it is. Right. बाहर हमारे पास था अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा. आप देखिए अल्फा माइनस गामा यहां से कॉमन आ रहा है तो यहां से अगर कॉमन ले लूंगा मैं तो यहां पे क्या बचेगा, इट्स बिकम 1. नाउ अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. नाउ 2 एलिमेंट्स अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए. यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 आ रहे हैं. So then it can be written as alpha minus beta, beta minus gamma, alpha minus gamma. तो it's 0 plus -1 और हाइड करेंगे अगर आप इसको ऐसे तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड विद दिस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा तो प्लस गामा. So this will be the answer. I think what should be बीटा माइनस गामा हमें करना है. ओके बीटा माइनस गामा आ रहा है. गामा माइनस अल्फा हमें करना है. ओके सो बेसिकली ये जो माइनस साइन है यहाँ पे तो हमें करना है बीटा माइनस गामा. तो ये अल्फा माइनस बीटा और ये जो माइनस साइन है दिस माइनस साइन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड इनसाइड दिस. सो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा लिखा हुआ आंसर में और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. So I hope this question is clear to you. So what I have done here, I have applied this property
यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये लगाई है मैंने, एक्सपेंशन हमें आता ही है इसका एक्सपेंड करना, और एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी. सो आई हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टीज 2 times एंड एक्सपेंशन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at this question 12. This question 12 is also similar like this. So इसमें मुझे दिखाई देता है यहाँ पे x minus y लाना है, y minus z लाना है, z minus x लाना है. Note this question in your notebook and take left hand side and parallelly solve the questions. आप साथ के साथ मैं सोल्व कर रहा हूं तो बैठ के देखें ना, अपनी नोटबुक पे आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लें और साथ के साथ आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब मुझे x माइनस वाई यहाँ पे लाने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें से इसको माइनस कर दूं. सो रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दूं और ठीक इसी तरह से रो 2 को कर दूं रो 2 माइनस रो 3. अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टीज अपनी नोटबुक में और देखिए क्या चेंज आया रो 1 और रो 2 में. सो आपकी रो 1 आई होगी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इट्स p x क्यूब माइनस वाई क्यूब. आपका जो रो 2 में चेंज आया होगा वो आया होगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपको ऑब्टेंड हुई होगी और यहां से p कॉमन ले लूं तो y क्यूब माइनस जेड क्यूब. एंड रो 3 में कोई भी चेंज नहीं किया हम लोगों ने, जेड स्क्वायर एंड इट्स 1 प्लस p जेड क्यूब. सो आई होप दिस मैट्रिक्स यू हैव ऑब्टेंड दिस मैट्रिक्स. ठीक है. इसके बाद आई होप यू नो द फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होगा. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. राइट. सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ से देखो कॉमन ले लूं अगर मैं, इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम हियर, इफ आई टेक एक्स माइनस वाई कॉमन एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, ले सकते हैं कॉमन क्योंकि इस x क्यूब माइनस वाई क्यूब में भी x माइनस वाई आता है फॉर्मूले में. राइट. सो लेट अस टेक कॉमन. फिर आप इसको कॉमन ले लीजिएगा. आप कॉमन लेके आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी यहाँ पे, तो आपकी मैट्रिक्स में रिमेनिंग टर्म यहाँ पे 1 बचा होगा आपका, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे p एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. यहाँ पे आपका 1 आया होगा, यहाँ पे y प्लस जेड आएगा एंड यहाँ पे p एंड इट्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड दिस रो सेम. राइट. देन व्हाट शुड डू नाउ. अब हमें चाहिए यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या एलिमेंट चाहिए हमें ये देख लेते हैं एक बार. फिर हमें जेड माइनस एक्स भी चाहिए. क्या हम लोग जेड माइनस एक्स किसी तरह से बना सकते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं. जेड माइनस एक्स मुझे यहां से बनता दिखाई देता है. अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो y से y कट जाएगा. तो एक बार फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं r1 माइनस r2. राइट. सो देन व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, x माइनस y एज इट इज, y माइनस z एज इट इज. तो फर्स्ट रो ऑब्टेन्ड होगी आपको 0 x माइनस z और ये जो एक्सप्रेशन है दिस माइनस दिस, इसको मैं सेपरेटली इधर माइनस कर देता हूं और यहाँ पे मैट्रिक्स में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिख लेता हूं. तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये है p एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से p मैंने कॉमन ले लिया है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड. तो यहां से माइनस किया तो वाई स्क्वायर तो नहीं रहा, वाई स्क्वायर कट गया तो ये बचेगा हमारे पास एक्स एक्स वाई. तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर पे एक प्रॉपर्टी लगाइए. ये लीजिए एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड और यहाँ पे देखिए एक्स वाई और वाई जेड में से आप वाई कॉमन लेंगे अगर, तो अगर आप वाई कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स माइनस जेड. राइट. अब देखिएगा इसमें से एक्स माइनस जेड कॉमन आ रहा है
So it can be written as px minus z, and here inside it is x plus y plus z. So this is inside. So ये मैंने इधर सिंप्लीफाई कर लिया, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखने पे ये x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, और ये यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया कॉमन x माइनस जेड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा रिमेनिंग, p x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। दो चीजें मैंने एक साथ कर दी हैं इस स्टेप में, कॉमन भी मैंने डायरेक्टली ले लिया है, एंड दिस थिंग एज इट इज। अब आपके पास 3 टर्म आ गई हैं, एक टर्म और लानी है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड किसके अलोंग करना चाहेंगे, एक्सपेंड इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके, सो दिस थिंग एज इट इज, x माइनस वाई, y माइनस जेड, x minus z as it is. Then after that इसको एक्सपेंड करिए, तो 0 नहीं ले रहा हूं मैं, -1 ले रहा हूं। -1 को हाइड करूंगा तो दिस थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस विल बिकम 1 प्लस पी जेड क्यूब, माइनस दिस थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस विल बिकम जेड पी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड, राइट। माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस यहां पे आएगा p x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस माइनस प्लस, एंड हाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, इनसाइड द ब्रैकेट इट्स दिस मल्टीप्लाइड विद जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया इससे, ठीक है। तो दिस जेड स्क्वायर कैंसल दिस जेड स्क्वायर, लेट अस सिंप्लीफाई इट लिटिल बिट, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आया -1 माइनस पी जेड क्यूब माइनस विल बिकम प्लस पी वाई स्क्वायर जेड प्लस पी जेड क्यूब प्लस पी एक्स वाई जेड प्लस पी एक्स पी वाई पी जेड, नो नो, प्लस नोट माइनस पी एक्स वाई जेड माइनस पी वाई स्क्वायर जेड माइनस पी वाई जेड स्क्वायर। तो ये चीजें हमें ऑब्टेंड हुई, कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं क्या, पी वाई स्क्वायर जेड ये कैंसिल कर रहा है इसको, पी एक्स वाई जेड इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो दिस थिंग इज रिमेनिंग, माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं यहां से, लेट मी चेक व्हाट वी नीड टू प्रूव, क्या करना था हमें इसमें, पी वाई जेड स्क्वायर जो प्रूव करना था वो तो कट गई चीजें, कुछ कैलकुलेशन हो गई है गड़बड़ इसमें। आया किसी का आंसर, किसी ने सोल्व किया इसको, कर रहे हैं अभी, कहीं गलती कर दी है मैंने इसमें, कहाँ करी गलती देखें जरा, नहीं कुछ किया होगा गड़बड़, प्लस माइनस प्लस, ओके प्लस कर लिया है, जेड स्क्वायर आ गया माइनस एक्स जेड वाई आ गया, माइनस जेड स्क्वायर कट गया इससे,
ब्रैकेट ओपन किए, माइनस माइनस, ये तीनों प्लस आ गए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी जेड क्यूब। अच्छा, so I have done a mistake in this here. Here I have done a mistake. So this is not the term. ये वाली टर्म नहीं है। So इसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे मुझे जेड पी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था वाई जेड से, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे प्लस पी वाई जेड स्क्वायर, राइट। पी वाई जेड स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे। और ये जो मैंने काटा था इसको एक्स वाई जेड को, तो ये नहीं कटेगा इससे, एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेगा। सो विच टर्म कैंसल, तो यहाँ पे ये टर्म इसको कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आर दिस, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं इन दोनों टर्म से, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, एंड हियर इनसाइड द ब्रैकेट इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एंड दैट थिंग इज इक्वल टू RHS, राइट। yes, this is the RHS. So I hope this question is clear to you. एक बार और बता दूं मैं, यहां से मैंने बस इसको एक्सपेंड किया, प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे लगाई थी, R1 माइनस R2, एक प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, और ऊपर मैंने सेम एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन ये दो ही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की थी, देन आई हैव एक्सपेंडेड एंड देन वी हैव गोट द आंसर, राइट। बताइए अपराजिता जी, आपको कहां से समझ नहीं आया क्वेश्चन? इसको हम दोबारा से सारे क्वेश्चन को बता दें, या आपको कहीं ऐसी जगह से समझ नहीं आया वहीं से बता दें? सर बताती हूँ। ओके, बताइए। थोड़ा नीचे। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया, R1 माइनस R2 माइनस R3 का, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, फिर R1 माइनस R2 लगाया, ये समझ आया। सर लास्ट में जो आपने ये कैलकुलेशन किया है ना, ये इधर जो किया, इधर वाला काम, हाँ, इसको एक बार और बता देते हैं। ये बेसिकली जब मैं R1 माइनस R2 कर रहा था, तो ये जो ये वाली टर्म है, कैसे बताऊं, अच्छा ऐसे, ये वाली टर्म, ये वाली, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना था मुझे, समझ पा रहे हैं? यस। तो मैंने पहले इसको लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, देखो पी मैंने यहां से कॉमन ले लिया माइनस करते टाइम, तो अंदर ये लिखा, माइनस का साइन लगा के ये लिखा, ये लिखा, माइनस का साइन लगा के ये लिखा, राइट। इतना Yes, sir. समझ में आ रहा है? फिर यहां से आपका एक वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को काट दिया, तो वाई स्क्वायर अब हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, दोनों लड़ाई करते थे, दोनों ने काट दिया। अब यहां बचा एक्स स्क्वायर, और ये देखो जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड लिख सकता हूं? Yes, sir. ओके, अब ये देखो एक्स वाई था यहाँ पे, और ये पे यहाँ पे वाई जेड था, तो यहाँ से अगर वाई कॉमन ले लूं मैं, तो वाई कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा जेड, तो एक्स माइनस जेड यहाँ पे आ गया। Yes, sir. अब यहाँ से एक्स माइनस जेड और यहाँ से एक्स माइनस जेड कॉमन लेके बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ये लिखा हुआ। Yes, sir. अब इस स्टेप में से, इसमें से मैंने यहाँ से इसको x प्लस वाई से y प्लस जेड को माइनस किया, तो यहाँ पे x माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा p और ये, और फिर यहाँ से कॉमन लिया तो 1, और फिर मैंने इसको बस एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करके कैलकुलेशंस है फिर। Yes, sir. Okay, so that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing we will discuss in the next class. Thank you, sir. Okay, welcome.